Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty analysis with MJ. Friends, आज है 10th January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan for the next trading day जो कि कल पड़ेगा Monday को 11th January 2021 में, right? And well, if you are new to our YouTube channel, friends, do consider subscribing it such that you can get latest information and analysis on Nifty, Bank Nifty, and various kind of stocks, right? And also, don't forget to press the bell icon such that you get notification. And be generous to share these videos with your friends and trading communities for whom we have really created these videos. We are here to serve the trading community and the people who are, participating in the stock market but have less knowledge. So let's share the good words around, right? And let's go to the daily Nifty, daily chart of Nifty and Bank Nifty and see what kind of scenario has emerged on Friday, right? That was the last trading day of the previous of this week, right? So अगर हम देखें तो Nifty as well as Bank Nifty both opened gap up with a bullish bias. Nifty retained its bullish momentum, while as a Bank Nifty में profit booking start हुई and Bank Nifty had a selling pressure throughout the day. Although Bank Nifty closed more than 100 points above than the previous close, that means Bank Nifty ने भी gain के साथ में ही day close किया, but Bank Nifty में bearish candle बनी, while as in Nifty it's a bullish candle, right? So top contributor of Friday were Maruti, Tech Mahindra, Wipro, UPL and Infi. Top losers थे Hindalco, IndusInd Bank, Tata Steel, Airtel and Gas Authorities of India Limited, right? So these were the top 5 contributors and losers from Nifty 50 stack. अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट की ओवरऑल ब्रेथ पॉजिटिव रही फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे, जहां पे कि 41 स्टॉक्स एडवांस किए और 9 स्टॉक्स डिक्लाइन किए आउट ऑफ अगेन 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50. एंड ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें जिसमें कि स्मॉल कैप मिड कैप भी आते हैं, तो लेट्स से स्मॉल कैप निफ्टी 100 के जो लार्ज कैप है एंड जो निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स है, दे ऑल वर अप starting from 1% to 1.4% के आसपास में सब इस रेंज में आप थे. हमने फ्राइडे के लिए जो एक निफ्टी की रेंज डिसाइड की थी वो थी 14,000 से 14,280 की फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए 31,400 से 32,400 की. ऑल्दो बैंक निफ्टी कंप्लीटली उसी रेंज में ट्रेड किया, बट निफ्टी ने अपर साइड में ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास में हमारी जो अपर लिमिट थी उसको ब्रीच किया. वेल दैट वाज गुड. एंड जो ये रेंज हम निकालते हैं फ्रेंड्स, दैट्स बेस्ड अपॉन data and technical analysis, and you can also learn it and you can be capable of doing your own analysis. हाँ, of course सीखना पड़ेगा वो चीज, राइट? अगर हम ट्रेंड पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहे. सो पार्टी ऑन दलाल स्ट्रीट गोज ऑन, अप ट्रेंड कंटिन्यूज. अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो ऑल्दो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी रेड कैंडल बना रहा है, बट अगर आप वीकली चार्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स तो दोनों चार्ट में आपको बुलिश बायस नजर आएगा और स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग bullish दिखाई देगा, right? So this is a weekly chart for Nifty as well as Bank Nifty. Both have made a very good base at 23% Fibonacci level. So that shows the strength of both the indices. अगर हम प्राइस एक्शन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगले ट्रेडिंग डे के लिए निकालना चाहें, निफ्टी में यू कुड सी दैट द डाउन साइड सपोर्ट इज एट 14,300, 14,258, 14,222 and 14,175. So that's a lower limit. And अपर लिमिट अगर हम निकालना चाहें, रेजिस्टेंसेस हम देखेंगे उसके लिए 14,367 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, सेकेंड है 14,400 का, थर्ड है 14,450 एंड फोर्थ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 14,515 की. सो अगर हम प्राइस एक्शन से रेंज देखना चाहें तो 14,175 से 14,515 की एक हमको ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे नजर आ रही है. और अगर हम बैंक निफ्टी में सिमिलरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहें तो क्योंकि बैंक निफ्टी क्लोज हुई 32,084 पे विद अ नेट गेन ऑफ ऑलमोस्ट 128 पॉइंट, तो यहाँ पे सपोर्ट हमारे पास में जो है 32,008 का है, 31,911 का सेकेंड सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट है 31,800 का,
फोर्थ सपोर्ट है 31,695 का। सो लोअर साइड में 31,695 हमको सपोर्ट नजर आ रहा है। अपर साइड में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस है 32,177 का, 32,298 का सेकेंड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस है 32,347 का, एंड फोर्थ है 32,465 का। अगर 32,465 का फोर्थ रेजिस्टेंस टूटता है तो देन 32,613 is the ultimate resistance level for Bank Nifty for Monday. And remember, 32,613 is also all-time high of Bank Nifty, which was touched, I think, in the month of January 2020, right before the great fall of COVID. Right. So ye level, of course, Bank Nifty will try to, whether it gets achieved on Monday or Tuesday is a matter of concern which we need to watch out. So these are the resistance and support levels. फ्रेंड्स, एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए आपको, जैसे जैसे मार्केट जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मार्केट में यू नो support and resistance levels are slowly upside में shift कर रहे हैं. This is one of the important, if you are following my analysis every day, you would see that these levels going upside also gives you indication that bullishness in both the indices, overall structure of the indices is strong and bullishness continues. अगर हम डेटा पर्सपेक्टिव से इस मार्केट को देखना चाहे, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी लुकिंग इन स्मॉलर टाइम फ्रेम कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द बायस, एंड द बायस ऑफ द मार्केट और बायसेस ऑफ द मार्केट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डेटा एंड वेरियस अदर फैक्टर्स विच विल बी डिस्कसिंग नाउ. अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो पहला डेटा पॉइंट जो हमारे पास में उभर के आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमको ऑप्शन चेन से, एंड वी आर लुकिंग एट वीकली ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी विच विल एक्सपायर ऑन 14 जनवरी. Since Nifty closed at 14,347, तो 14,350 हमारा at the money का काम करेगा. That is the strike at which we'll be focusing, and around it we will see what kind of open interest have been created such that we can see support and resistance levels here. Now the पहला support level friends हमारे पास में emerge होके आ रहा है 14,300 पे, जहाँ पे कि ओवरऑल 1.9 या ऑलमोस्ट 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास में हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स 1.6 मिलियन सिर्फ फ्राइडे को क्रिएट हुए. सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास में 14,250 का है. थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास में है 14,200 का. ना 14,200 का जो है वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की स्ट्राइक भी है. सो दिस विल बी आर सपोर्ट लेवल ऑन द लोअर साइड. सिमिलरली अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो कॉल राइटर्स बेयर्स होते हैं और बेयरिश व्यू वाले लोग होते हैं. तो बेयरिश व्यू वाले लोगों ने काफी यहाँ पे अनवाइंडिंग की हुई है, राइट. तो ये अनवाइंडिंग क्यों की? बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस ये लोअर लेवल पे हिल गया है. सो दे नो दैट द मार्केट विल नॉट कम टू दीज लोअर लेवल, सो दे आर क्लोजिंग देयर पोजीशंस व्हिच दे हैव सोल्ड. हाउएवर 14,300 पे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट अभी भी 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. दैट मींस ये बेयर्स सोचते हैं कि कमिंग वीक में मार्केट 14,300 से नीचे भी जा सकती है. सो दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नोटिस यू शुड मेक ऑफ. एंड अगेन 14,250 पे भी 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास में यहाँ पे मौजूद है. However, these cannot be called resistance levels as they are in the money options. तो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल जो इमर्ज होके आ रहा है वो आ रहा है 14,350 पे. सेकेंड लेवल हमारा आ रहा है 14,400 पे, जहाँ पे कि 1.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, और ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है. बट एक चीज नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे कुछ खास कॉल राइटिंग जैसे पुट राइटिंग हुई है 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, तो वैसे यहाँ पे कॉल राइटिंग बड़ी एग्रेसिव नहीं हुई है. दैट शोज दैट बेयर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा डे बाय डे हिलते जा रहा है, राइट. R3 हमारा निकल के आता है 14,450 पे, एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 14,500 पे, और ये लेवल पे ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑल्दो कॉल राइटिंग नई बहुत ज्यादा नहीं हुई है. सो दिस इज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऑफ दिस option chain series. So we can say 14,200 से लेके 14,500 का रेंज जो है हमको यहाँ
डेटा से भी निकल के आ रहा है। अगर आप देखें प्राइस एक्शन से आपको आ रहा था 14,175 टू 14,515 और यहाँ पे आ रहा है 14,200 से 14,500. So we can say that the data points are syncing with the प्राइस एक्शन पॉइंट्स एंड दैट्स गुड पार्ट ऑफ इट क्योंकि इसमें क्लैरिटी है ना। सिमिलरली अगर फ्रेंड्स हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी का अगेन we'll be looking at the same series मतलब 14 जनवरी एक्सपायरी की। now since 32,084 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है तो 32,100 पे हमारा हम एट द मनी कंसीडर करेंगे, राइट। तो 32,100 के आसपास में अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे जो पहला सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट 32,000 पे है, 84 पॉइंट नीचे, राइट। सो दिस में बी ब्रीज्ड बट ऑलमोस्ट एवरी लेवल यू कैन सी दैट अच्छी पुट राइटिंग हुई है। और अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो 31,500 की जो हमको रेंज नजर आती है डाउन साइड में, दैट विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। एंड ऑन द अपर साइड में यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है पुट राइटिंग से भी, and that's making the put call ratio for this series as a bearish, right? While as Nifty का put call ratio 1.3 है जो कि mildly bullish है, तो यहाँ पे 0.84 है इसका PCR, तो which is comparatively न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस के साथ में है। और इसमें जो अपर साइड दिखाई दे रही लिमिटेड दिखाई दे रही 32,500 की। सो यू कैन से 31,500 से 32,500 की लेवल दिखाई दे रही है यहाँ पे। 31,000 की तरफ मार्केट तभी जाएगी जब 32,000 ओपन होगा, टूटेगा, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। सो पॉसिबली बैंक निफ्टी मंडे को शायद 32,000 ब्रेक ना करे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और this is also visible from price action perspective, right friends? So let's go back to this chart now. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 32,008 पे हमारा यहाँ पे जो है पहला सपोर्ट है और इसके आसपास में काफी छोटे छोटे एकदम नजदीक नजदीक में सपोर्ट है। दैट शोज ऑल्दो बैंक निफ्टी में 3 रेड कैंडल बने हैं बट स्ट्रेंथ बुलिश बनी हुई है, राइट। नाउ सेकंड डेटा पॉइंट फ्रेंड्स हमारा आता है एफआईएस का डेटा से। अभी फ्राइडे को आफ्टर मेनी वीक्स फ्राइडे FIIs वर एग्रेसिव बायर्स, दे बॉट equities in cash market was 6,030 crore, right? जनरली इनका 2-2,500 रुपए पर डे का चलते आ रहा था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, एंड जनवरी में तो ऑफ कोर्स बहुत कम बाइंग हो रही थी, बट नाउ सडनली इन जनवरी on 8th they were aggressive buyers, while as DIIs were net sellers with a 2,373 crore जो कि बाइंग के कंपेरिजन में काफी छोटा था अमाउंट। सो equities में FIIs are still pumping up the money, that's pulling the market up, so liquidity easy है। और अगर हम ऑप्शन फ्रंट में देखें डेटा के पर्सपेक्टिव से तो ऑप्शन फ्रंट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन में FIIs एज वेल एज प्रोज आर साइडवेज, रिटेलर्स आर माइल्डली बुलिश जो कि जनरली वो रहते हैं। और अगर हम इंडेक्स के फ्यूचर को देखें तो FIIs आर bullish, their buying pressure on index future is threefold, while the pros, retailers and DIs are net shorters. Now अगर हम so these are the data perspectives, the data perspective से यहाँ पे clearly हमको buying नजर होते हुए नजर आ रही, markets are bullish. Now अगर हम international market की तरफ बात करें friends, we would look at Germany and London as a market. तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। डेक्स जर्मनी हैज ऑलरेडी you can say that जो इसका प्री कोविड लेवल था डेक्स जर्मनी उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और लेट मी सी व्हाई this is not opening up both the charts, and rather let me put both the charts in perspective, right? तो यहाँ पे डेक्स जर्मनी के जगह पे नैस्डैक सेव हो गया, तो लेट मी ओपन डेक्स फ्यूचर फ्रेंड्स हियर। एंड डेक्स फ्यूचर का अगर आप देखेंगे तो यू वुड सी वेरी क्लियर बुलिश बायस स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा एक फ्लैग में से ब्रेकआउट निकला है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे FTSC देखेंगे, दैट ऑल्सो FTSC का फ्यूचर देखते हैं, राइट। सो
because these futures of these countries are traded more or less all time. तो यहाँ पे आपको एक यू नो बाइंग प्रेशर दिखाई देगा, और स्ट्रक्चर जो है बहुत क्लियरली यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स नाउ सिंस लंडन Financial Times of London has not even yet reached the प्री कोविड लेवल्स, राइट. तो अच्छा एक 15-20% का अपसाइड यहाँ पे बहुत क्लियर है, और ये फ्लैग कंप्लीटली वो टारगेट में जाके रुकेगा. सो दैट मीन्स देयर इज अ रीजन टू फ्यूल अप द मार्केट, राइट, while as the DEX has already taken a breakout from a pre-COVID level. So that's one good news in the market. Now अगर आप NASDAQ को देखेंगे फ्रेंड्स, NASDAQ at the same time, let me open. NASDAQ काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, एंड नाउ इट इज ऑलरेडी इन अ अप मूव, राइट. तो अब पिछली रेंज से ये ब्रेकआउट कर गया है, सो यू कुड सी दैट आल्सो हैज अ बाइंग इमर्जिंग अ लॉट. एंड अगर आप S&P 500 एंड डाउ जोन्स का फ्यूचर देखेंगे तो यू कुड सी दैट क्लियर ब्रेकआउट है दोनों जगह पे. And now US has got political stability. That's another good news the markets are celebrating. So as long as these markets are with a bullish bias, friends, हमारा market भी move करेगा, because as of now international markets are completely in sync with each other. India as an emerging market is popular among FIIs, so as long as FII money comes, you will see our markets rising higher and higher. Now एक बार USD INR और गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स. यू वुड सी दैट gold is also indicating the kind of, let me see gold future here, let me apply gold future, right. So gold future में भी अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो let me rather जो यहाँ पे प्री सेव्ड चार्ट है मेरे को उसको लगाने दीजिए, सो दैट यू कैन सी द ट्रेंड लाइन इन दैट, राइट. सो अगर आप देखेंगे तो USD INR का फ्यूचर like it was in a up channel, but up channel के साथ साथ में एक डाउन चैनल यहाँ पे बनी हुई है, जिसको हम डिसेंडिंग चैनल भी बोलते हैं. और डिसेंडिंग चैनल में USD INR धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है. व्हाट डज इट इंडिकेट? मतलब डॉलर का भाव धीरे 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 कम हो रहा है, और इसको जो सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 72 आने वाले टाइम में 72.4 के आसपास में मिलेगा. सो देयर इज अ फर्दर स्कोप फॉर डॉलर टू फॉल विद रिस्पेक्ट टू रुपीज. सो दैट इज क्योंकि डॉलर हमारे निफ्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी कैन सी दैट निफ्टी में अभी गुंजाइश है थोड़ा बहुत और ऊपर जाने की. सिमिलरली अगर गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड इज अ सेफ हेवन फॉर द इन्वेस्टर, एंड एज ऑफ नाउ ऑल्दो गोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइज हुआ है, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में गोल्ड धीरे धीरे नीचे आया है. सो व्हाट डज इट मीन? अगेन गोल्ड सेफ हेवन होने की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मार्केट के, निफ्टी के. तो गोल्ड एंड सिल्वर अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और थोड़ा ऊपर जा सकता है. तो गोल्ड को सपोर्ट यहाँ पे कुछ दिनों तक मिलेगा. उसके बाद में मे बी Now there are two reasons for gold to go up. एक तो इसकी जो टाइम बेस्ड वैल्यू है वो ऊपर जाते रहती है. सेकेंड होती है रिस्क बेस्ड. तो रिस्क बेस्ड एज ऑफ नाउ रिस्क बेस्ड वैल्यू इसको ऊपर नहीं लेके जा रही है, क्योंकि ज्यादातर फंड्स जो है अभी निफ्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, निफ्टी में डिप्लॉय हो रहे हैं, तो ऐसे में गोल्ड ऊपर जाएगा नहीं. लेकिन जैसे ही निफ्टी में थोड़ा रिस्क आएगा तो ये अपना जो असेंडिंग चैनल है इसमें ऊपर मूव करना चालू कर देगा. सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ओवरऑल व्हाट इट इज इंडिकेटिंग एज मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस बनी रहेगी, एंड दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स एज वेल. हाउएवर अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो दे आर इन ओवरबॉट जोन. ओवरबॉट जोन में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होते रहता है, so that should not surprise you, and you should not suddenly become a bearish on the market. Of course there are indicators which are indicating there is a negative divergences, but negative divergences next day से काम करना कर जाए जिस दिन आपको दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है. Market can still move up as long as money is flowing, and sometime they will defy the technical analysis as well.
because money has a lot of power. As long as 14,000 के ऊपर है निफ्टी, आप समझ लो कि बुलिश है और 14,600 इसका टारगेट है. सिमिलरली एज लॉन्ग एज 31,500 के ऊपर बैंक निफ्टी है, 32,800 या 32,000 या 32,800 हमारा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है. राइट, लेट्स ओपन दीज चार्ट्स ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी हाउ यू कैन ट्रेड देम ऑन इंट्राडे बेसिस ऑन अ smaller time frame. So Nifty का chart खोलते हैं friends. As I have been saying that Nifty as well as Bank Nifty had been buy on dips and sell on rise, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ स्टार्ट होती है. ऑल्दो फ्राइडे को ऐसा निफ्टी में नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वैसे ही हुआ. सो यू नीड टू बी नोइंग द स्ट्रेटजीज फॉर going short or going long or selling the options to make money, right? So अगर निफ्टी मंडे को 14,300 से 14,367 की रेंज में स्टार्ट होती है, तो वेट फॉर 30 मिनट टू 45 मिनट्स ऑफ मार्केट ओपनिंग एंड ओआरसी रेंज जैसे ही ब्रेक होती है, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ में, दैट कुड बी अ सुपर ट्रेंड बेस्ड और वीवैप बेस्ड स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए आप यूज करें और उसको ट्रेड कर लें. राइट, और अगर सपोज करो निफ्टी 14,400 या 14,450 पे स्टार्ट होती, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट निफ्टी वंस द लोअर रेंज ऑफ ओआरसी इज ब्रोकन. आप शॉर्ट करें और सुपर ट्रेंड को अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करते रहे. राइट, सो इन दैट केस दी सपोर्ट लेवल्स विल बिकम योर टारगेट्स. सिमिलरली अगर निफ्टी 14,250 या 14,200 के लेवल पे स्टार्ट होती है, तो यू विल गेट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. ओआरसी अपर साइड में जैसे ही ब्रेकआउट होती है, आप इसको लॉन्ग ट्रेड करें. अगेन वीवैप के ऊपर रहनी चाहिए है, सुपर ट्रेंड के ऊपर रहनी चाहिए, एंड सुपर ट्रेंड को आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं एज अ trailing, that will also give you a trailing stop loss. So you can trade Nifty that way. Overall bias Nifty में अभी भी bullish बना हुआ है. That's your preferred trade should be the long one. However, market की कोई guarantee नहीं है. You need to look at the market fresh when the market opens at. You should keep on looking at that data points always. Now अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट है और चलते रहेगी, ऐसे लगता आने वाले काफी टाइम तक. तो 32,400 32,500 पे अगर बैंक निफ्टी स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू short the bank nifty, and these lower levels of resistance and below level of support would become the targets for you. अगर बैंक निफ्टी 32,000 से 32,177 या 200 के लेवल तक स्टार्ट होती है, इन विद इन दिस रेंज स्टार्ट होती है, तो वॉच आउट, दिस इज अ रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल जोन फॉर बैंक निफ्टी. सो ऐसे में हाफ एन आवर 45 मिनट वेट करें, ओआरसी ब्रेकआउट होने दें. जिस भी साइड में ओआरसी ब्रेकआउट हो, अगर लॉन्ग साइड में होती है, लॉन्ग साइड ट्रेड जाए, प्रोवाइडेड योर वीवैप इज बिलो द प्राइस और एंड सुपर ट्रेंड इज बिलो प्राइस. एंड अगर ओआरसी डाउन साइड में ब्रेकआउट होती है, तो यू कैन शॉर्ट बैंक निफ्टी फॉर the target of these support levels. However, the support levels are so close that the downside of Nifty is not recommended much, because आपके या तो you should be scalper की बहुत जल्दी जल्दी आप प्रॉफिट बुक कर पाए, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी. हाँ, अगर बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे स्टार्ट होती है, लेट्स से 31,700 31,800 इवन 31,900 पे, तो इन दैट केस आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, आप बिंदास लॉन्ग जाएं, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपके टारगेट का काम करेंगे इन दैट केस. एंड यू कैन मेक अ डिसेंट 50 और 200 पॉइंट्स का एक टारगेट आप बना सकते हैं. अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन सेल पुट्स एंड कॉल्स एंड फॉलो द ऑप्शन स्ट्रेटजीज व्हाट वी वुड हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एज आवर स्टूडेंट्स, राइट? तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे. आई एम श्योर फ्रेंड्स, विद दिस एनालिसिस it gives a clear sense of how to trade short or long side of Nifty and Bank Nifty. The trading range for Monday is 14,200 to 14,500 for Nifty, and Bank Nifty के लिए 31,500 से 32,600 की रेंज मुझे दिखाई दे रही है. Since markets are in overbought zone, all the indicators are in a daily, weekly and monthly are showing market in overbought zone, so correction should not surprise you. If you are trading, do use stop losses, and if you are in profit,
trailing stop loss is must. Keep on booking the profit, friends. Nobody has become poorer by booking the profits. That should be the philosophy. And of course, watch out the fresh data, uh, including India VIX, USD INR chart, and gold chart. They will help you to understand the overall, current scenario in the market. And that will help you to, take positions and cut out your positions. Thank you once again for watching and liking the videos. Please share the videos with your friends and trading community so that they can also be benefited. I'm sure there are many videos here which can help you to enhance your trading and investing skills in the market, friends. All right. And wish you a good luck, happy trading, happy investing. See you in the next video.